Hello everyone, how are you all? Myself CA Shivanshu Avadia, and this video is basically my CA final success story. I recently qualified my CA final exam in November 2022 exam. Okay, so basically this idea of making video is that maybe some person might feel motivated after watching this video. He may find this video inspirational or whatever, and if I can help even a single person, the purpose of this video is solved. Okay, I posted my CA final story in Instagram as well, and people really loved it and find it very much inspirational. So I thought, why not to make this video, why not to make a video on YouTube as well. Yeah, so guys, let me go through you all guys with myself. I was a very basic average student. मेरा कभी ऐसे 90-95% नहीं आया. मैं जस्ट वो 70 to 80s के लाइन में एवरेज स्टूडेंट था, जस्ट नॉर्मल. ओके, एंड तो मुझे नहीं था कि मैं सीए कभी बन पाऊँगा इन माई 12th स्टैंडर्ड. बट माई फादर पुश्ड मी टू जस्ट टू कंप्लीट दिस, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. तो मेरे पापा ने एक कंडीशन रखी कि ओके सीपीटी दे दे, अगर नहीं हुआ जस्ट एक अटैम्प्ट, अगर नहीं हुआ तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट. मैंने कहा ओके डन. अपन का होने का था नहीं, ज़्यादा सोचा नहीं था कि अपना हो जाएगा. तो मैंने कहा ओके डन, नो प्रॉब्लम, लेट्स गिव इट अ ट्राई. So I joined a very good classes in Nagpur, and I completed my classes and gave my first attempt as December 2015. Yeah, and result came and I cleared my CPT. So it was little shock, and I cleared with good marks. Okay, it was good marks, 125 out of 200. So for me it is a good mark at least. So I cleared CPT. So I was little shocked as well कि यार अब कंप्लीट करना पड़ेगा. अब तो आप एंटर हो चुके हो सीए कोर्स में. सो ओके, बट ये सुना था कि सीए कोर्स में एंटर होना इजी है, पर निकलना, एग्जिट लेना थोड़ा मुश्किल. पर एक था कि यार कर लेंगे. ओके, देन आया आईपीसीसी. IPCC also, I used to cry a lot, guys. I used to cry a lot in call with in front of my parents. Yeah, मैं बोलता था यार मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को वापस लेने आ जाओ. मैं लिटरली रोता था गाइस कि नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि क्लासेस ऐसी चलती थी, सुबह से आप जा रहे हो क्लासेस, सीधा शाम को आप घर वापस आ रहे हो, एंड वापस आने के बाद भी थोड़ा ब्रेक लेके आप वापस पढ़ रहे हो, एंड देन क्लास में टेस्ट हो रहे हैं. सो यू आर नॉट अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट्स, सो आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं. मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, एंड योर फ्रेंड्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल. माई फ्रेंड सर्कल, दे ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. ओके, सो उनको देख के डर लग रहा था. सो व्हाट टू डू मैन. मैंने कह दिया कि मुझे नहीं हो पाएगा, आप लोग लेने आ जाओ. बट दे सेड ओके जस्ट डू इट, ट्राई इट. एंड एट दैट टाइम मेरे फादर ने एक बात बोली थी मुझे, जो मुझे आज भी बहुत ज़्यादा पुश करती है, कि जब आप आगे बढ़ चुके हो तो पीछे पलट के मत देखो. I did the same, and guys, I cleared my IPCC also in first attempt, first group. And in November 16 I cleared my IPCC, and November 17 I cleared my IPCC group 2. Okay, then I joined my articleship just after clearing my first group of IPCC. I joined articleship in a mid-sized firm of Nagpur, and yeah, everything was going well. CA फाइनल नज़दीक आ रहे थे कुछ टाइम में, एंड समझ रहा था. सो आई जॉइंड सम क्लासेस एज वेल फॉर CA फाइनल. And just before 4 months of my CA final exam, my CA final exam was due on November 2019. That was my first attempt for CA final. Okay, and I got my leaves from July, like 4 month I get to for preparation. So yeah, everything was okay. I joined the, like I went home, my hometown, to study, and I started studying well. And yeah, everything was going good.
But just 15 days before my CA final exam, I lost my father. Yes, just 15 days before. And uh, so there was, like, due to a major heart attack, I lost my father. And that too in Nagpur, the city in which I have to give the exam. Yeah, I was studying that city. तो बहुत ज़्यादा I was in trauma, I was in depression, and whatever you call it. I was shocked. From internally, I was really shocked because I was genuinely not expecting this, because my father was healthy. He was not on medicines or anything before this heart attack. So I was very much, it was very much an unexpected thing. And everyone was like sure that Shivanshu is not going to give exam this time. He will give the next attempt, May attempt. But one thing was there. One thing was for sure, that I am the one who made my father proud. Most, like, my father was most proud on me. उन्हें उनके पास सब चीज़ें थी, पर पैसा था, गाड़ी थी, घर था, पर उनको जितना प्राउड मैंने फील कराया उतना किसी ने नहीं कराया। बिकॉज वो कभी भी अपने दोस्तों के बीच बैठते थे तो वो ये बात नहीं करते थे कि बाकी चीज़ों की, वो हमेशा मेरी बात करते थे कि मेरे बेटे ने ये निकाल लिया, सीपीटी निकाल लिया, आईपीसीसी निकाल लिया, अब इसके फाइनल आने वाले हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। ही वॉज सो 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 मच प्राउड ऑन मी। सो चीज़ें तो पूरी करनी थी, बिकॉज उन्हीं का सपना था, उनके कहने पर मैं सीए में एंटर किया था। सो कंप्लीट तो करना था क्योंकि उनका सपना था। तो मैंने एग्ज़ाम दिए, ओके। एंड जस्ट जो 13वीं का फंक्शन होता है, पूजा होती है, उसमें मेरे घर में इतने मेहमान थे, वो सब छोड़ के मैं नागपुर गया। मतलब जस्ट पूजा कंप्लीट की एंड मैं गया नागपुर एग्ज़ाम देने के लिए, जस्ट क्योंकि एक दिन का गैप था और उसके बाद एग्ज़ाम थे। गाइस, मैंने एग्ज़ाम दिए, मैंने पूरे एग्ज़ाम दिए, मतलब 8 सब्जेक्ट्स दिए मैंने। बट दैट टाइम वॉज रियली रियली टफ फॉर मी, बिकॉज I was not in the situation to give the exam, but I was just giving it for the sake of my father happiness. I was literally crying all day and studying all day. Everything, like, even sometimes I remember आंसू रुक नहीं रहे, बुक में टपके जा रहे हैं एंड बुक के पेजेस पलटे जा रहे हैं, ये तक की सिचुएशन हुई थी। बट इट हैपेंस, लाइक, इट्स ओके। रिजल्ट केम एंड आई फेल्ड बोथ ग्रुप। So it's okay, I guess. But at least I tried. I was happy that I tried, and I know now the what is the exam paper pattern I will see in upcoming exams. Okay, so I was okay with it. Then the next attempt, which were going to be held in May, it got cancelled due to Corona. Shit. Already sadness, depression, failure का और father का, and then paper cancel. So it was a shock for me कि क्या हो रहा है ये लाइफ में। Literally I was in shock. I was so much in depression that time. ओके, नो वरीज। दैन फाइनली एग्ज़ाम हुए दिसंबर में। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक के क्लियर नहीं था कि एग्ज़ाम होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, ड्यू टू कोविड एंड ऑल। So everyone was in shock, dilemma, like, actually, like, paper होंगे नहीं होंगे। My friends called me one day before, don't do it, don't worry about it, brother, exam are not going to be held, I'm sure, this council member said this council member said that, XYZ. So but I was preparing for my exam, and again I gave both group with the corona uncertainties. And result came after few months, and I failed again. Guys, believe me, I was in so fucking shock. I can't even tell you what was my condition. By that time I really wish that I should not be anymore, like, I should suicide or something, because I was not able to tolerate this failure. What to do? I was in shock. I was in
depression, sadness, everything, you know. I was fighting with in my home in for silly things. I used to fight with my siblings also, which I regret of so much. So it's okay. Then next attempt came. In this attempt my strategy was little different. I just focused on one group, simply one group, second group, and I switched off my phone. I i did whatever I could, you know. I switched off my phone. I used to go temple every day, and I used to worship Lord Hanuman every day, and no contact for 3 months. I was in complete and I was completely underground. My friends not were not able to contact me. So, you know, totally underground. My schedule was like I used to wake up early in the morning, get ready, go to temple, pray there. I used to pray for like 1.5 hour a day, 1.5 hour a day. Literally, I used to pray, like all mantras and everything. So I used to do that, and then go back home and then study full day and then sleep early so that I can wake up early. So that's what my schedule. I and I did it for like some span for like 2 3 months, and I gave only one group and I cleared it. Group 2 cleared. Thanks God, लाइफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया. एंड यू नो गाइज, वो जो खुशी थी ना कि मेरा मतलब एक CA फाइनल का एक ग्रुप क्लियर हो गया है गाइज, अनमैचेबल. आई एम टेलिंग यू. उस टाइम पे लगा था कि यस, नाउ आई कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तब थोड़ा खुद पे भरोसा आया था कि नहीं यार, थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएगा. एंड इतना सब करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद फाइनली एक पड़ाव मिला मुझे, तो मैं बहुत खुश था. एंड खुशी खुशी में हम कुछ ज़्यादा खुश हो गए. आई वॉज पार्टिंग, आई वॉज यू नो मीटिंग पीपल, celebrating my success. I was doing every fucking thing apart from studies. एंड फाइनली जब एक महीना बचा था एग्ज़ाम को, मैं पढ़ने बैठा जस्ट एक महीने पहले, और मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया. एंड दैट टू वेरी सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन, ऐसा कि मैं 10 दिन तक के कुछ खा भी नहीं पा रहा था. तो मुझे घर जाना पड़ा अपने होम टाउन 10 दिनों के लिए. एंड तब जाके मेरी रिकवरी हुई सब गले की. ओके, आई वॉज इन फुल हैवी मेडिकेशन. तो ये चीज़ हो गया. बचे सिर्फ 20 दिन. एंड ऑफ कोर्स गाइस, यू ऑल नो CA फाइनल फर्स्ट ग्रुप 20 दिन में निकालना इज़ नॉट पॉसिबल. स्टिल आई गिव एग्ज़ाम एंड आई फेल्ड इट, विच मुझे पता है. मैं बहुत अशेम्ड भी हूँ उस चीज़ के लिए कि मैंने ये चीज़ थोड़ा ईजी लिया अपने CA फाइनल फर्स्ट ग्रुप को. बट इट्स ओके, होता है. मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट अटैम्प्ट अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. एंड देन जैसे रिजल्ट आया, मैं फेल हुआ. इट्स ओके, मैं पढ़ने बैठ गया. जस्ट विद इन अ वीक मैं फुल ऑन पढ़ाई में बैठ गया. ओके, आई यूज टू गो लाइब्रेरी फॉर लाइक फुल डे, कंप्लीट फुल डे. I used to spend like 10 15 hours, 10 12 hours in the library, and I used to study a lot. कंप्लीट 3 months मैंने इतना पढ़ा है, मतलब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा. ओके, एंड मुझे चीज़ें आ भी रही थी. आई वॉज एबल टू डू थिंग्स वेरी प्रॉपरली. एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी सर्टेन एंड वेरी गुड, एज पर प्लान. एवरीथिंग वॉज एज पर प्लान. ओके, एंड जस्ट एक महीने पहले मॉक टेस्ट होते हैं ICI के. मैंने मॉक टेस्ट दिए एंड आई गॉट एग्जाम्पशन इन FR, so which boost my confidence, because exemption in FR and even SFM and law I scored very well. Okay, so I was very much confident. Okay, I am going to, you know, nail it. Exam came, first day of exam. I was in so much panic. I was you know I was in, पता नहीं क्या हो गया था. इतना डर रहा था कि जैसे मेरा फर्स्ट टाइम मैं CA के एग्ज़ाम दे रहा हूँ. मैं इतना डर रहा था. एंड इट वॉज फकिंग हॉट. ओके, मे दैट टू इन नागपुर, द हॉटेस्ट सिटी ऑफ इंडिया.
and I drink coffee. Yes, coffee. Just before exam. इतना गर्मी हुआ अंदर, इतना अजीब अजीब सब चीज़ें, एंड आई पैनिक्ड इन माई एग्ज़ाम, एंड आई फर्स्ट आई जस्ट सब चीज़ें ख़राब कर दिया मैंने मेरा फर्स्ट पेपर में FR में. एंड मैं आया, मैं रो रहा हूँ, मैं बस रो रहा हूँ, मेरे घर में कॉल करके मैं रो रहा हूँ. दूसरा दिन, उस टाइम मुझे SFM में 2 दिन का गैप था, मैं पेपर से आने के बाद रो रहा हूँ. मैं दूसरे दिन फुल ऑन रो रहा हूँ. लोगों को लग रहा है कि मेरी लाइब्रेरी में कि ये बस रो रहा है, इसका पेपर इतना बुरा नहीं गया है, इसको लग रहा है कि इसका पेपर बहुत बुरा गया है, पर हो जाएगा ये क्लियर. लाइब्रेरी में लोगों को लग रहा था, बट नो मैन, मुझे पता था कि बहुत गंदा गया है मेरा पेपर. मैं बस रो रहा हूँ. ओके, 2 दिन तक कि मैं रोया. फिर जैसे जैसे मैंने SFM दिया, लॉ दिया, ऑडिट दिया, एंड इट वेंट वेल. FR से तो बेटर गए. रिजल्ट केम, आई फेल्ड इन FR, एक्सपेक्टेड. नाउ अब मैं सोच चुका था कि CA फाइनल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, लाइक CA इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, एंड आई एम गोइंग टू लीव CA. श्योर, सब प्लानिंग हो गई. मैं घर में बोल दिया कि आई डोंट वांट टू गिव इट एनी मोर और सब चीज़ें, बट एंड बहुत ज़्यादा मैं अगेन वही फेज़ आ गया, डिप्रेशन वाला, चिड़चिड़ करना. मैं इतनी छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगा कि मेरे घर वाले बोलने लगे कि क्या हो गया है तुझे, क्यों ऐसा कर रहा है. मैं पब्लिक प्लेस में नहीं जाता था, मैं अपने फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर रहा था, बिकॉज मुझे शर्म आ रही थी कि अगर मैं गया फैमिली फंक्शन अटेंड किया तो लोग मुझसे मेरा रिज़ल्ट के बारे में पूछेंगे, मेरे CA फाइनल के बारे में पूछेंगे, और मैं फिर कुछ आंसर नहीं दे पाऊँगा. तो मैंने घर से निकलना बंद कर दिया, मैंने पब्लिक कॉन्टैक्ट्स कट कर दिए, मैं इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दिया. मतलब इतना ज़्यादा मेरे लाइफ में ख़राब फेज़ आ गया था. देन मैं सोच लिया था कि ओके, अब नहीं देना है, कोई सेंस नहीं बन रहा है, बिकॉज इतने बार देखे तो देख लिए पर नहीं हो रहा है. सो आई सेड अब ओके, लेट्स लीव इट हियर. मैंने घर में बात कर लिया कि क्या करना है, कैसे करना है. दे सेड कि ओके, जस्ट गिव इट वन मोर टाइम, एंड अगर नहीं हुआ सो तेरे लिए कुछ शॉप वगैरह ओपन कर देंगे. एंड वी हैड आइडिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का कुछ शोरूम वगैरह शुरू कर देंगे. Me, my brother and my mother have this discussion. So yeah, it was that much certain that I'm not going to give exam. Okay, सब चीज़ें हो गई. मैं बोला ओके फाइन, एक महीने के लिए करके देख लेते हैं. उस टाइम पे जस्ट बिफोर 1.5 months ऑफ माई एग्ज़ाम, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, बीइंग ग्रेटफुल फॉर थिंग्स यू हैव rather than cribbing about things you don't have. That small word thank you changed my life, guys. Literally, I'm saying this, that small word changed my life completely. उसने मुझे बोला कि just be thankful for even smaller things you have, and I started doing this. So मैं छोटी छोटी बातों को थैंक यू बोलने लगा. ओके, इवन मैं घर में खाना खाता था, मेरी भाभी मुझे खाना देती थी, परसते थे, तो मैं बोलता था, मन में बोल देता था थैंक यू खाना देने के लिए. मेरा कुछ भी हो रहा है मेरे साथ ना, छोटी से छोटी चीज़ें, मैं अपने टेबल को पढ़ने के बाद बोलता थैंक यू. टेबल को सोचो, मैं इतना ज़्यादा हो गया कि हर छोटी छोटी चीज़ को थैंक यू बोलने लगा. और जैसे जैसे मैं थैंक यू बोलता था ना, मेरा जो गुस्सा था वो कम होने लगा ऑटोमेटिकली. मेरे घर वालों ने ये चीज़ नोटिस कर ली है. एंड वो लोग पूछना चालू कर दिए कि क्या हो गया, मतलब तू आजकल थोड़ा अच्छा हो गया है. बोला कुछ नहीं. क्यों? बोले नहीं, आजकल गुस्सा नहीं करता. अब मैं गुस्सा क्यों करूँगा इस, मैं अब वो चीज़ देख रहा था जो मेरे लिए उन लोगों ने करा, रादर देन जो चीज़ उन लोगों ने नहीं किया जिसके लिए मैं गुस्सा हो सकता था. तो मेरी थॉट प्रोसेस एकदम पॉजिटिव हो गई, एकदम 360 डिग्री चेंज, सब चीज़ें 180 डिग्री चेंज आ गया मेरी चीज़ों पे, सब चीज़ें. एंड मैं कहा ठीक है फाइन. फिर मैं एक महीने के लिए वापस नागपुर गया जस्ट बिफोर एग्ज़ाम. 1 महीने की प्रिपरेशन मैंने शुरू करी. एंड दिस टाइम मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. मुझे जस्ट
ऊपर वाले के लिए शुक्रिया बोलना है, मुझे ग्रेटफुल रहना है जो भी चीज़ मेरे पास है, जो चीज़ मुझे मिली है। मुझे यूनिवर्स को उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है, और मुझे बस मैनिफेस्ट करना है कि क्या चीज़ मुझे चाहिए, उसको विजुलाइज करना है, उसको लिखना है, बस दैट्स इट। मुझे ये चीज़ करना है, मैंने वही चीज़ किया। मैं सो मेरा ये लास्ट 1 मंथ का, और मैंने नंबर चेंज कर लिया अपना वापस। ओके, मैंने नई सिम खरीद लिया जिसका नंबर किसी के पास नहीं था, मेरे नागपुर में किसी दोस्तों के पास नहीं था, सिर्फ मेरी फैमिली के पास था और मेरा एक फ्रेंड है उसके पास था। मैं सुबह उठता था। ओके, सुबह आई यूज़ टू वेक अप एट 4 एवरी मॉर्निंग, और सुबह उठने के बाद आई फ्रेश अप वगैरह होना, एंड देन कॉफ़ी टी वॉट एवर लेता था, एंड देन आई गो टू बालकनी, एंड बालकनी में मैं ऊपर देख के बोलता था कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी वॉट एवर यू हैव गिव मी, लाइक थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड देन आई आस्क दैम प्लीज़ मेड मी सी दिस अटेम्प्ट। मैं बस यही बोलता था, एंड मैं बोलता था कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, और एक्चुअली प्रेजेंट टेंस में बोलता था कि ओके आई बिकेम CA in November 22 exam, so thank you so much universe for serving me this, and thank you for giving me XYZ सब चीज़ें जो जो चाहिए थे। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो गुड मार्क्स इन माई CA फाइनल। तो मैंने ये सब चीज़ें किया। सो एंड देन फिर मैं पढ़ने बैठता था। मैं रूम अपने फ्लैट में भी पढ़ता था, और मैं लाइब्रेरी भी जाता था, एंड देन पढ़ता था दिन में जितना भी होता था, एंड रात में 9 साढ़े 9 बजे आई यूज़ टू वाइंड अप, एंड 10 बजे तक मैं सो जाता था। तो मैं 10 बजे सोता था, तब जाके मैं 4 बजे सुबह उठ पाता था। इट्स वेरी सिंपल। ओके, चीज़ें चल रही थी, पर सुबह उठने से जो पॉजिटिविटी आ रही थी मेरे अंदर, दैट्स अनमैचेबल गाइस। मतलब उसका मैं आपको क्या बताऊँ, इतना पॉजिटिव रहता था मैं दिन भर, बहुत बहुत ज़्यादा, और अच्छा फील होता था। एंड आई यूज़ टू गो टेम्पल इन द इवनिंग, शिव जी के टेम्पल पे, एंड आई यूज़ टू मैं जल अर्पण करता था हर रोज़ शिव जी को शाम के टाइम पे जाके। दैट यूज़ टू गिव मी सो पॉजिटिव एनर्जी। बेसिकली इस बार मैं पढ़ रहा था, पढ़ाई के साथ साथ मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहा था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें फॉलो कर रहा था, जिसने मेरे माइंड को बिल्ड किया। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाया। नॉलेज तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, मेरा पिछले अटेम्प्ट में भी नॉलेज स्ट्रॉन्ग था, पर नहीं कर पाया था ना, स्ट्रेस हो गया था, पैनिक हो गया था, एग्ज़ाम में नहीं, फेल हो गया। तो मुझे पता था इस बार मुझे क्या करना है, मुझे अपने माइंड, अपने ब्रेन में फोकस करना है कि मैं कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, अपने माइंड सेट को। सो मैंने वही किया। आई गेव माई एग्ज़ाम्स, एंड बिफोर गिविंग एग्ज़ाम आई यूज़ टू गो टेम्पल शिव जी के। आई यूज़ टू डू अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, एंड आई यूज़ टू गिव माई सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस दैट यस, आज का पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, मैं इतने मार्क्स का सॉल्व करके आने वाला हूँ, दिस दैट एवरीथिंग मैंने किया। मेरा फर्स्ट पेपर गया FR, जिसमें मैं पिछले टर्म में फ़ेल हुआ था। मेरा पेपर अच्छा गया, डिसेंट गया। आई राइट फॉर 85 मार्क्स, एंड इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री। आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स फॉर श्योर। सेकेंड पेपर SFM, आई सॉल्व फॉर 110 marks, that too before time. Okay, so it was very good, paper went very good. I was sure that I'm going to score very good in SFM. Audit, I scored for like 115 marks, like 114 marks, 114 mark का पेपर ही आता है। I solved each and every question of my audit paper, each and every question. Okay, though okay, done. Now law, जस्ट 1 डे बिफोर लॉ मैं बहुत ज़्यादा अचानक से कैजुअल हो गया, सपने देखने लगा कि कल पेपर ख़त्म होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। इस चक्कर में मैं उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाया लॉ, बट मैं पेपर दिया। इट वेंट नॉट वेरी वेल, इट वेंट लिटिल डर लग रहा था कि हाँ, अगर अब कोई रोक सकता है तो इट्स लॉ। आई न्यू दैट। ओके, बट डर लग रहा था। बट जब मैं निकल रहा था, एग्ज़ाम्स दे के जा रहा था ना गाइज, तो मुझे आज भी याद है, आई वॉज इन माई बाइक एंड आई हैड अ स्माइल इन माई फेस दैट ओके मैन, आई हैव गिवन माई 100%।
जो हुआ सो हुआ, doesn't matter. But this time it was my 100%, and I'm 100% sure that I'm going to get better result as compared to my previous results. For this I was literally sure. Okay, so yeah, I gave exams, and then I in next 1.5 months I enjoyed a lot, and then result came, एंड मैं रात भर सो नहीं पाया, दूसरे दिन रिजल्ट आना था, रात भर सो नहीं पाया, 9 को मैं सो नहीं पाया, 10 को रिजल्ट था हमारा, 10 जनवरी 2023। सो मैं सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, नहीं सो पा रहा, बट फाइनली मेरी सुबह 6 बजे नींद खुली, मेरा 8 बजे सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली। मेरे दोस्त का कॉल आया। ओके, मैंने अपने दोस्त को कॉल करके बोल रखा था एक रात पहले, उसको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ दे रखा था, और बोल दिया था कि भाई रिजल्ट देख लेना, बता देना मुझे क्या है, पर ऐसे डायरेक्टली मत बताना कि फेल हो गया ये वो, ऐसे पहले थोड़ी बातें करना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, XYZ, फिर धीरे से रिजल्ट बताना। ओके, तो मुझे कॉल आया सुबह 8 बजे, मैंने कॉल उठाया, तो ही वॉज लाइक, मामा तू पास हो गया। मैं नींद में हूँ। ओके, मैं 6 बजे सोया हूँ, 8 बजे मेरी नींद खुल रही है। बोला क्या क्या बोल रहा है दुबे तू? तो वो बोलता है मामा तू पास हो गया है। मैंने कहा मतलब? तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ कि क्या, बस पास हो गया मतलब क्या, सीए बन गया? बोले तू सीए बन गया। मैन क्या बोल रहा है? मैं फ़ोन वापस देखा, मैं टाइम देखा, मैं बोला क्या बोल, सच में? मैं बोलता हाँ। सच में? बोलता हाँ। मैं कहा मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, तो स्क्रीनशॉट भेज रिजल्ट का। बोलता है रुक। उसने विद इन फ्यू सेकेंड्स उसने रिजल्ट भेजा मेरे को। मैं रिजल्ट चेक किया, शिवांशु अवधिया पास 220 मार्क्स, 50 plus in every subject, okay, and exemption in SFM. Man, oh, that was so unbelievable feeling, guys. मैं खुश हुआ, मैंने उससे, बट जो भी है, मैंने कॉल काटा, मैंने फिर अपने नीचे घर गया, मैंने मम्मी को, मतलब नीचे आया घर में, मैं आवाज़ दिया मम्मी को, मेरे भाई भाभी सब आ गए, एंड देन वी हग्ड, फैमिली हग, माय मदर स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, यू नो, एंड देन पार्टी शुरू हो गई, और मेरे घर में मेरे बाकी दोस्त लोग माला लेके आ गए और मिठाइयाँ लेके आ गए। इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ गाइस, मैं क्या बताऊँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था फॉर अ मोमेंट कि ये सच में हो रहा है क्या। मैं बार बार खुद को छू के देख रहा था कि यार सच में, क्योंकि मैं सो के ही उठा था जस्ट, ऐसा नहीं था कि मैं जाग अच्छी कंडीशन में था, मैं सो के उठा था और ऐसा हुआ। गाइस हो ये चीज़ है कि मुझे टाइम लगा, पर मुझे चीज़ें मिली। हर बार जो बंदा 30-40 मार्क के लिए रह जाता था, इस बार उसके पास 20 ज़्यादा मार्क्स। इस बार मेरे 220 आए थे, 200 की ज़रूरत थी, 220 आए, 20 मार्क एक्स्ट्रा थे। जो हर बार मेरे को 40-50 कम पड़ते थे, इस बार 20 एक्स्ट्रा थे मेरे पास। सो आप ये देखो, ब्यूटी ऑफ आवर माइंडसेट। If your mindset is good, you can do any fucking thing you want in your life. Okay, if you are, I would say everyone is in their time zone. मुझे 6 अटेम्प्ट लग गए CA फाइनल क्लियर करने में। यस, 6 अटेम्प्ट। बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, एवरी वन इज़ सो प्राउड ऑफ मी। फॉर श्योर मेरे फादर जहाँ भी होंगे वो बहुत खुश होंगे, एंड ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ मी एज वेल। ही मस्ट बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने उनका सपना पूरा किया है। सो गाइज, आप लेट नहीं हो, यू आर जस्ट इन योर टाइम जोन। इफ़ यू थिंक दैट थिंग्स आर गेटिंग टाइम टू you know happen, just have faith in yourself, because good thing takes time, but it will happen for sure. Yeah, and just have believe in yourself, keep it real, guys. So that's what my CA final story was. I hope you liked the video. If you did, just give me a comment that you liked the video, so I will make another videos on another stories. Yeah, I have few more stories to tell about my CA journey only, so we'll tell you
See you guys. Thank you for listening this video. And if you are in CA final, just have faith in yourself and keep chasing your dream. Bye.